Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 4th of September 2020 Friday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is life has no remote, get up and change it yourself. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. SoftBank eyes partners to bid for TikTok India. As we all know that the Chinese app TikTok has been banned in India. Therefore, SoftBank Group is exploring the assembling of a group for bidding TikTok's assets in India. It has been known that it is actively looking for local partners for partnering into the bidding process of TikTok India's assets. Japanese conglomerate SoftBank is having the stake in TikTok's Chinese parent company, that is ByteDance. Therefore, SoftBank is exploring and has explored the option with Reliance Jio as well as Bharti Airtel. But as per the people aware with the matter, they are saying the initial discussion with Reliance and Bharti Airtel has been fizzled. तो भारती एयरटेल और रिलायंस कम्युनिकेशन से जो टॉक हो रही थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई. इसके बाद सॉफ्टबैंक ने अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है. और ये ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी टिकटॉक इज़ कंसिडरिंग द ऑप्शन टू सेल इट्स ऑपरेशन बिकॉज ऑफ द लोकल बैन बाई गवर्नमेंट. और बहुत सारी गवर्नमेंट जिन्होंने टिकटॉक को बैन भी किया है, उनका जो बेसिक रीज़न है वो सेंसिटिविटी ओवर यूज़र डेटा, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट्स ने टिकटॉक को बैन कर दिया. दैट इज़ वाई नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो टिकटॉक एंड द पार्टनर्स ऑफ टिकटॉक कंपनी are looking for selling their stake or assets. India has been taken a particularly tough stance banning approximately 49 Chinese internet services in July. After that, more than 100 Chinese apt in second stance. And according to the data, India is one of the largest market for TikTok with more than 200 million यूज़र्स. तो इंडिया में बैन होने की वजह से टिकटॉक को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और इसी की वजह से जो जापानीज़ कॉन्ग्लोमरेट है जिसका टिकटॉक में स्टेक है, दैट इज़ लुकिंग टू हैव पार्टनरशिप with any Indian company so that the Indian assets can be sold out. और रिसेंटली आप लोगों ने सुना भी होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिकटॉक को थ्रेट किया था कि उनको भी अमेरिका से भी बैन कर दिया जाएगा. और इसके बाद ByteDance को ऑर्डर दिया गया है कि वो अपने असेट्स को सेल कर दें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले डिसीजंस में टिकटॉक को भी बैन किए जाने का डिसीजन लिया जा सकता है amid national security concern. It is a tough time for TikTok. Number of local governments are shutting down this app, raising the concern about the user data. And the governments and the security authorities are alleging that the data which is collected by TikTok has been handed over to the Chinese government that can have the severe concern on sovereignty and security of not only India but for other countries as well. तो इंडिया में बैन होना टिकटॉक के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिसके बाद से आपको पता भी होगा कि उनके सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया था. और अब सॉफ्टबैंक जो कि एक मेजर पार्टनर है टिकटॉक कंपनी में, वो इंडिया में असेट्स को सेल आउट करने के लिए पार्टनरशिप देख रहा है. हालांकि इनिशियल टॉक्स जो रिलायंस से और एयरटेल से जो इनिशियल टॉक्स हुई थी वो टॉक्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. डोंट डिक्लेयर अकाउंट्स एनपीए टिल फर्दर ऑर्डर सेज एससी. थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दे दिया है कि जितने भी अकाउंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना लोन रीपेमेंट नहीं किया है कोरोना पीरियड में, या लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करी है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे नहीं किया है, उनको फ़िलहाल के लिए आगे आने वाले 2 मंथ्स तक एनपीए की कैटेगरी में क्लासीफाई ना किया जाए. A 3-judge bench headed by Justice Ashok Bhushan was hearing the bench of petition challenging the levy of interest on loan during the moratorium period. जैसा कि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस केस को, कि जो कि कोरोना ड्यूरेशन है जिसमें आरबीआई ने जितने भी लोन टेकर्स थे जिन्होंने लोन ले रखा था, जिनकी इंस्टॉलमेंट थी, उनको 90 डेज़ का और ज़्यादा टाइम दिया था, या आप कह सकते हैं मोराटोरियम पीरियड उनका एक्सटेंड कर दिया था 90 डेज़ मोर ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19. ऐसे बिजनेस जिनके पास कोई बिजनेस जनरेशन नहीं हुआ था, इनकम जनरेशन नहीं हुआ था, तो आरबीआई ने उनको 90 दिन का और टाइम बढ़ा दिया था अपने लोन इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए.
बट जितने भी बोरोवर्स हैं उनका ये कहना है कि इस ड्यूरेशन में, इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में जब उनकी कोई इनकम नहीं हुई, जब वो अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट ही नहीं पे कर पाए, तो वो जो इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग थी उस पर इंटरेस्ट लगना और उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना सही नहीं है, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। और सुप्रीम कोर्ट भी कंटिन्यूसली आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहा है कि इस ड्यूरेशन में, जबकि आपने मोरेटोरियम एक्सटेंड कर दिया था, उस ड्यूरेशन में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाना सही नहीं है। जबकि बैंक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, आरबीआई का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो कमर्शियल बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू था इस चीज़ पर, उनका ये कहना था कि दे हैव द डिपॉजिटर, उन्हें डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिपॉजिटर का पैसा ही वो लोन के फॉर्म में देते हैं। तो अगर वो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर मोरेटोरियम पीरियड में, तो वो बोरोवर से भी इंटरेस्ट लेंगे। अगर बोरोवर का इंटरेस्ट वो माफ़ कर देते हैं या उसको फॉरगो कर देते हैं, तो इट विल बी द ह्यूज लॉस फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, और जिससे बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में क्रेडिट ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ किया है, बैंक्स के एनपीए ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, और अगर उस ड्यूरेशन में इंटरेस्ट का भी वेवर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो बैंक्स की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ, वो और ज़्यादा डिटोरिएट हो जाएगी। आरबीआई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जबकि आपने 90 डेज़ का मोरेटोरियम एक्सटेंशन दिया था, तो उस ड्यूरेशन में जब ऑलरेडी इनकम हुई ही नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, जो बोरोवर्स हैं उनकी कोई इनकम जनरेशन नहीं हुई है, तो उस ड्यूरेशन पे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाना इज़ नॉट लीगल, इट शुड नॉट बी डन। तो इसी के लिए ये केस कई लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है, जिस पे एपेक्स कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि फ़िलहाल के लिए आगे आने वाले 2 मंथ्स तक ऐसे सारे असेट्स, ऐसे सारे बोरोवर्स, ऐसे सारे लोन टेकर्स जिन्होंने इस पर्टिकुलर कोरोना ड्यूरेशन में लोन रीपेमेंट नहीं करी है, लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, उस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे नहीं किया है, उनको एनपीए की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। In a view of the above, the account which were not declared NPA till August 31st, 2020 shall not be declared NPA till further orders। और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद जो स्ट्रेस बोरोवर थे, स्पेशली जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस थे, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये आगे आने वाले सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, ये अभी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। 2 मंथ तक अभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट दे। किस तरह से वर्डिक्ट देता है, वेवर दिया जाएगा या लोन के जो इंस्टॉलमेंट है उसको आगे फर्दर के पेमेंट के लिए डिफ़र कर दिया जाएगा, क्या वर्डिक्ट आता है ये तो देखने की बात है। लेकिन फ़िलहाल के लिए 2 महीने के लिए जो स्ट्रेस बोरोवर थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ प्रोवाइड किया है, और आरबीआई से और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ब्रॉडर सोल्यूशन की बात करिए कि दोनों साथ मिल करके एक ब्रॉडर सोल्यूशन पर आएँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को आरबीआई की एक्सपर्टाइज पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि आरबीआई जो भी डिसीजन लेगा, वेदर टू waive the interest rate or interest on interest, whether to take, but सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों को ही स्ट्रेस बोरोवर, स्पेशली स्मॉल स्केल जो कंपनीज़ हैं, जो नॉन बैंकिंग सेक्टर है, उनकी कंडीशन पर भी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आना चाहिए जिससे कि जो बोरोवर्स हैं, स्ट्रेस बोरोवर्स हैं, स्पेसिफिकली वो स्ट्रेस बोरोवर्स जिनका बिजनेस कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। तो फ़िलहाल के लिए एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और स्टील सेक्टर में जितने भी बोरोवर्स थे, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% बोरोवर जो कि डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन में आ गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि 2 महीने तक तो आप उन्हें एनपीए की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, रेजोल्यूशन भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी आपको पता है आईबीसी December 31st तक आईबीसी को भी पोस्टपोन कर दिया गया है, तो रिजोल्यूशन की प्रोसेस तो नहीं, बट आरबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस को या कोई ब्रॉडर सोल्यूशन को लेकर के आया जाए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। FM tells banks to frame loan recast scheme by September 15। Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday told the banks to put in place by September 15 loan restructuring scheme to rescue all viable business units affected by COVID-19 पैंडेमिक। तो अगर आप इस न्यूज़ को एज ए एक्सटेंशन न्यूज़ पढ़ें पहले की न्यूज़ में, तो
इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2 महीने तक, आगे आने वाले 2 महीने तक किसी भी जो स्ट्रेस बोरोवर्स हैं उनको एनपीए की कैटेगरी में ना डाला जाए। और उसी के अलाइनमेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ये सजेशन दिया है, डायरेक्शन दिया है कि सितंबर 15 तक बैंक्स अपने जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स को लेकर आएँ, जिससे कि ऐसे वायबल बिजनेस जो पहले बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे थे, इस कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जिनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है उनको रेस्क्यू किया जा सके। ऐसा ना हो कि कोविड-19 के पर का जो इम्पैक्ट उन पर पड़ा है उसकी वजह से वो सारे वायबल बिजनेस रिजोल्यूशन की प्रोसेस में चले जाए। तो इसलिए अब फाइनेंस मिनिस्ट्री भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को प्रमोट करने जा रही है, और जिसके लिए जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, उनसे निर्मला सीतारमन जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है और ये कहा है कि ऑल द एंटिटीज़ वेदर द कमर्शियल बैंक्स और द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs ये एक ऐसी लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को लाएं जिससे कि वो सारे वायबल बिजनेस जो कि कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड हुए हैं उनके लोन को रीस्ट्रक्चर किया जा सके और उनको दोबारा से वायबल बनाया जा सके। टॉप बैंक एग्जीक्यूटिव सजेस्टेड की चेंजेस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम टू एकोमोडेट द बोरोवर्स हु फेस स्ट्रेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जो बैंक्स के जो टॉप ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए, जिसमें प्रोविजनिंग रेट्स को लोअर करने की बात कही गई है, हाउसिंग लोन्स हैं उनको भी रीस्ट्रक्चर करने की बात कही गई, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस बोरोवर्स हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन्स के बोरोवर्स हों चाहे वो बिजनेस यूनिट हो, उन सबको रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। और इसी के इंक्लिनेशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि दे आर इन कंटिन्यूअस टच विद द बैंकर्स एंड द RBI to ensure that the regulator provide the continuous assistance to them in the resolution process। और ऐसे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रिजोल्यूशन प्रोसेस में जाना चाहते हैं उस केस में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री बैंक्स और RBI उनको रेगुलर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी उनका रिजोल्यूशन हो सके। तो ये सारे की डिसीजंस हैं जो कि उस मीटिंग में लिए गए। क्विकली इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल रेजोल्यूशन प्लान, डोंट लेट कोविड रिलेटेड डिस्ट्रेस इम्पैक्ट द असेसमेंट ऑफ बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस। यही ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अलाइनमेंट में है कि बोरोवर्स को NPA की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी यही कहा है कि जो बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज ऑफ द कोविड रिलेटेड डिस्ट्रेस। जो बैंक्स ने सजेशंस दिए हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बैंक्स ने कहा है इंक्लूड बोरोवर्स विद डिफॉल्ट ऑफ मोर देन 30 days फ्रॉम द रीपेमेंट इन द रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, लोअर द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर रीस्ट्रक्चर्ड हाउसिंग लोन्स। तो ऐसे कुछ सजेशंस बैंक्स ने दिए हैं। कौन से सजेशन इम्प्लीमेंट होते हैं, बैंक्स किस तरह की लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को लेकर या स्कीम को लेकर के आते हैं, ये फ्यूचर में देखने वाली बात है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 1। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कॉस्ट फॉल्स बिलो ओवरनाइट रेपो। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड यील्ड और लिक्विडिटी सपोर्टिंग जो मेजर्स लिए थे उसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की, जो मार्केट कॉस्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की, वो ओवरनाइट रेपो रेट से भी बिलो हो गई है। इट मीन्स जो RBI ने मेजर लिए थे बॉन्ड यील्ड्स को चेक करने के लिए, लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए, वो सारे मेजर्स अब रिजल्ट शो करने लगे हैं। मोस्ट ऑफ द एंटिटीज आर अवॉइडिंग द लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड रूट गिवन द स्लम्प इन द इकोनॉमी। इंस्टेड दे आर मैनेजिंग विद द वर्किंग कैपिटल लोन रेज्ड एट अल्ट्रा लो रेट्स फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट, जिसकी वजह से RBI ने यह डिसीजन लिया था कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को अवॉइड किया जा रहा था कॉरपोरेट के थ्रू, या जो भी एंटिटीज़ फाइनेंसिंग कर रही थी या फंड रेज कर रही थी, तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड रूट को अवॉइड करके शॉर्ट टर्म लोन्स को प्रेफर कर रहे थे, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी उनकी जो मार्केट जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए सडनली RBI ने ये बॉन्ड यील्ड को और लिक्विडिटी सपोर्टिंग मेजर लिए थे, जिसकी वजह से अब जो कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो
ओवरनाइट रेपो रेट से भी डिक्रीज हो गई है। मीनवाइल बैंक्स आर लुकिंग फॉर सेफ बेट्स टू गिव लोन गिवन द ह्यूज लिक्विडिटी दे आर सिटिंग ऑन। तो कुछ सारे ऐसे डिसीजन थे, कॉर्पोरेट्स जो थे, एंटिटीज जो थी, वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रूट को प्रेफर नहीं कर रही थी। बैंक्स जो थे वो भी ऐसे लोन इस ऐसे एरिया में लोन देना चाह रहे थे जहां पर उनका लोन सेफ रहे। इवन कॉमर्शियल बैंक्स भी इस कोविड की सिचुएशन की ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्सिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहे थे। लिक्विडिटी बहुत थी बट बैंक्स वर नॉट रेडी टू गिव द लोन, क्योंकि बैंक्स को कहीं ना कहीं एनपीए होने का फेयर है। जिस इवन कई सारे मेजर्स भी लिए गए आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी है उसको लोन में कन्वर्ट किया जा सके, बट स्टिल बैंक वर अवर्सिव टू गिव लोन। दे वर लुकिंग फॉर अ सेफ बेट टू गिव लोन। केवल उसी एरिया में वो लोन लेंड कर रहे थे, लोन दे रहे थे जो कि सेफ थे, जहाँ पर उन्हें इस बात के चांसेस ज़्यादा थे कि ये लोन एनपीए में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग्स थी उसकी कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि जो आरबीआई ने मेजर लिए हैं उस मेजर की वजह से अब जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो मार्केट रेट्स हैं वो ओवरनाइट रेपो रेट से भी डिक्रीज हो गए हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज सेट टू हैव बोरोड अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ फ्रॉम बैंक एट द रेट एज लो एज 4.69%, द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड। हम अगर और बात करें अल्ट्रा लो मनी मार्केट रेट्स की, तो हम ये देख सकते हैं बीपीसीएल, एचपीसीएल, नाबार्ड, गोदरेज इंडस्ट्री, ग्रासिम, टाटा पावर, इन सब के अपने बॉन्ड्स के रेट आप देख सकते हैं। अब मैच्योरिटी डेट 10 डेज की मैच्योरिटी 3.16%, एचपीसीएल 25 डेज 3.17%। और जो पॉलिसी रेट है करंटली कितने चल रहे हैं, आरबीआई का रेपो रेट 4% है और जो रिवर्स रेपो रेट दैट इज 3.35%। तो मोस्टली अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो रेट्स हैं शॉर्ट टर्म के वो लोअर देन रिवर्स रेपो रेट और लोअर देन द आरबीआई रेपो रेट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6, सून कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन फॉर न्यू मेंबर्स। So now formal sector workers may soon have their pension accounts with the Employee Provident Fund Organization EPFO। EPFO के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जितने भी फॉर्मल सेक्टर के वर्कर हैं they can have their pension account with EPFO and that will directly benefits to high income group worker. How? They will have the benefit linked to their own share of contribution rather than from the pool of funds। तो अब जो जितना कंट्रीब्यूशन करेगा उसकी पेंशन में उतना इजाफा होगा। तो अपने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अब जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं दे कैन हैव pension, and this move basically help to the high income group workers so that they will get a higher pension, and it is aimed at making the pension fund of EPFO which is in deficit more sustainable। जो कि EPFO कई टाइम से डेफिसिट चल रहा था, जो कंट्रीब्यूशन था वो नहीं आ पा रहा था। तो अब अगर ये पेंशन फंड से इसको लिंक कर दिया जाएगा तो EPFO भी आगे आने वाले टाइम में सस्टेनेबल हो जाएगा। Amendments in EPS 1995 has been formulated and recommended to government for grant of pension on the basis of accumulation into individual pension account of the members। So this is the good news for those workers who are actually earning higher। तो अब EPFO में उनके contribution के according they can manipulate they can have their pension। The defined contribution system which is under which each member has individual pension account and the benefit admissible to member are linked to the contribution received in। तो अब कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो पेंशन फंड है उसके बेनिफिट भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो जो हायर जिनकी सैलरी ज़्यादा है फॉर्मल सेक्टर में दे कैन हैव मोर पेंशन एज पर देयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और इस मीटिंग को हेड किया था लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार। तो रिसेंटली और बहुत जल्दी ये चेंज इम्प्लीमेंट होने वाला है जहाँ पर पेंशन फंड को EPFO से लिंक कर दिया जाएगा। एंड करंट जो सिचुएशन वो क्या है, करंट सिचुएशन EPS contribution goes to pooled account rather than individual account and pension is paid at a retirement based on fixed formula not on their share of contribution। पेंशन निकालने के लिए एक फिक्स फार्मूला होता है, उसके बेसिस से पेंशन निकलती है, जो शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। एंड दिस मूव एम्ड एट मेकिंग EPS more sustainable and offer higher return to the worker those who are earning high income
pension amount proposed to be deposited to the account on income higher than 15,000 k 15k, and subscriber may be allowed to take out of cash if they are not employed with an establishment that covered under EPFO for 2 years. तो जो ये नया मूव आया है मेकओवर का, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन प्रीवियस मूव. कॉन्ट्रीब्यूशन के बेस पर फंड पेंशन डिटरमाइन होगी, नाइदर ऑन द बेसिस ऑफ द फिक्स्ड फॉर्मूला. दे कैन विदड्रॉ देयर अमाउंट इफ दे वांट. जो हायर पेंशन जिनको चाहिए दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर, सो दे विल दे गेट द हायर पेंशन. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. ईडी प्रोब्स ₹310 crore diverted from MIAL via Shell firms. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का बहुत टाइम से आपने न्यूज़ सुन रखी, हमने भी कई सारे जेवीके ने केस लॉन्च किया, किसी कंपनी ने किसी पे केस लॉन्च किया, कोई कंपनी ने अपना पार्टनर सेल कर दिया. देयर आर नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. तो अब जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस केस को प्रॉप किया है तो उसने पाया है कि अप्रॉक्सीमेटली 310 करोड़ का जो फंड है वो MIL के थ्रू, शेल फर्म्स के थ्रू डाइवर्ट हुआ है अंडर दिस प्रोजेक्ट, and a portion of this was routed back to the promoter of JVK Group in the joint venture company through multiple companies complex transactions. और GVK ने कहा कि जो MIL का सरप्लस फंड था उसने अपनी अदर ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनमें यूज़ किया. तो GVK हो गए, MIL के जो अदर शेल कंपनीज थी उन सब का इन्वॉल्वमेंट इसमें माना जा रहा है, जो भी पार्टनर्स थे उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें माना जा रहा था. फेडरल एजेंसी इज इन्वेस्टिगेटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट द GVK ग्रुप, द चेयरमैन, द प्रमोटर ऑफ द GVK ग्रुप, and for alleged irregularities of another 705 crore in the development of MIAL. तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा सिफन ऑफ किया गया है मनी का, जिसको लेकर के ईडी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ईडी इज़ गोइंग टू क्वेश्चन द MIAL CEO राजीव जैन. अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, व्हाट इज़ शेल कंपनीज. अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरेटिकली शेल कंपनीज आर कंपनीज विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन और सिग्निफिकेंट असेट. ऐसी कंपनी जो किसी एक्टिव बिजनेस में नहीं होती, सिर्फ पेपर पर होती है, उनके पास कोई सिग्निफिकेंट असेट नहीं होता है. दे कैन बी सेटअप बाय बिजनेस पीपल फॉर बोथ लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट पर्पस. कभी कभी लेजिटिमेट पर्पस के लिए भी इनको क्रिएट किया जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ये इललेजिटिमेट पर्पस के लिए या फंड को सिफन ऑफ करने के लिए ही होती हैं. कभी कभी लेजिटिमेट पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. बट मैक्सिमम टाइम जब भी हम शेल कंपनीज या शेल फर्म्स का नाम सुनते हैं तो माइंड में एक नोशन आता है कि इट इज़ इलीगल और इट इज़ फॉर इललेजिटिमेट पर्पस. तो शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि एक्टिव बिजनेस में नहीं होती या उनके पास कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल असेट्स नहीं होते हैं उस कंपनी के नाम पर. अगर हम इललेजिटिमेट पर्पस की बात करें जिसके लिए कंपनी को रजिस्टर किया था, तो इललेजिटिमेट पर्पस फॉर रजिस्टरिंग अ शेल कंपनी इंक्लूड्स हाइडिंग पर्टिकुलर ऑफ ownership from a law enforcement agencies or law enforcement companies, money laundering for unaccounted money, and for avoiding the taxes. So with the shell company as a friend, all the transactions are shown on paper as legitimate business transaction, thereby turning black money into white. In this process, the business person also avoid paying taxes on the laundered money. हालांकि स्टूडेंट ये माइंड कर लें, शेल कंपनी को किसी भी लॉ में डिफाइंड नहीं किया गया. इंडिया में ऐसा कोई कॉन्क्रीट लॉ नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं जिसने शेल कंपनी की कॉन्क्रीट डेफिनेशन दी हो. तो ओवरऑल आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ पेपर पर होती हैं, जिनका कोई एक्टिव बिजनेस नहीं होता या जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा टेंजिबल असेट या सिग्निफिकेंट असेट्स उनके नाम पर नहीं होते. बेसिकली इस तरह की कंपनी इसीलिए क्रिएट की जाती हैं कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट जो है या तो उसको ब्लैक से वाइट किया जा सके या उस अमाउंट को सिफन ऑफ किया जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग करी जा सके उस कंपनी के नाम पर. और इसी केस को ईडी जो है वो MIL में प्रॉब कर रहा है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप. व्हाई दिस मे बी द बेस्ट टाइम फॉर Amazon वर्जियन टू इन्वेस्ट इन वोडा. तो वोडाफोन में इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ कई टाइम से आ रही हैं. एक बार हमने भी डिस्कस किया था, गूगल इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इनटू वोडाफोन. नाउ देयर इज़ अ न्यूज़ दैट Amazon एंड अदर कंपनीज और अदर
e-commerce companies are also looking to invest into Vodafone. So this article covers the news from the point of view of the Vodafone, that why it is important and the best time for Amazon like companies to invest in Vodafone. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे. बेसिकली इस आर्टिकल का ये कहना है कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में ई कॉमर्स का जो रोल है, ई कॉमर्स जो है उसका बिजनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. एंड वोडाफोन इज़ वन ऑफ द टारगेट जो कि अमेज़ॉन और वर्जियन जैसी कंपनीज वोडाफोन में इन्वेस्ट कर सकती हैं इन ऑर्डर टू टैकल द alliance of Facebook and Reliance Jio and the Facebook and the other companies. जो बड़े बड़े कंपनीज हैं तो उसके जो अलायंस बने हैं उसको टैकल करने के लिए इंडिया में अमेज़ॉन के लिए वोडाफोन विल बी द गुड पार्टनर. हालांकि इस न्यूज़ के बाद में हम देख सकते हैं वोडाफोन के जो शेयर हैं वो 27% से पॉजिटिवली हिट हुए हैं. हालांकि अभी ऐसा कोई डिसीजन आया नहीं है दैट अमेज़ॉन एंड वर्जिन इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन वोडा, बट र्यूमर के कारण ही आप देख सकते हैं कि जो इम्पैक्ट है सितंबर 2 से और सितंबर 3 के बीच में जो वोडाफोन के शेयर हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 27% तक हाइक कर गए हैं. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप. कॉन्ट्रैक्शन इन सर्विसेज PMI स्लोज. जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो PMI है वो 52 क्रॉस 50 की लिमिट क्रॉस करके 52 तक पहुंच गया है. आज की न्यूज़ में सर्विसेज के लिए भी ये इंडिकेशन दिया गया कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था सर्विसेज PMI में वो स्लो हो गया एंड दैट इज़ द गुड इंडिकेशन. इफ़ यू रिमेंबर 50 का पॉइंट मैंने बताया था आपको कि 50 का पॉइंट जो होता है वो उसके नीचे कॉन्ट्रैक्शन और उसके ऊपर हम एक्सपेंशन मानते हैं. एक्सपेंशन इज़ गुड फॉर एनी इकोनॉमी. कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट कंसीडर्ड एज गुड. तो सर्विसेज सेक्टर में भी अब जो इंडिकेशन आ रहे हैं उनके इंडिकेशन के अकॉर्डिंग जो लास्ट 6 मंथ हैं उसमें जो सर्विसेज PMI कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था बट अब वो कॉन्ट्रैक्शन लोअर हो गया, स्लो हो गया है, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो एक्टिविटीज़ इन सर्विसेज हैं स्पेशली इन द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग टू बी स्टेबलाइज एटलीस्ट इफ़ नॉट गोइंग फॉर एक्सपेंशन बट स्टेबलाइजेशन. So companies are gradually resuming their operation and this forced the companies to continue layoff, shows the data widely tracked by IHS Market Purchasing Manager Index, though at a slower rate than seen in July. हालांकि अभी इसमें एक्सपेंशन देखने को नहीं मिल रहा है स्टूडेंट, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन का रेट था वो जुलाई के कंपैरिजन में कम रहा है. तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये कॉन्ट्रैक्शन और कम हो और जो सर्विस का PMI है वो एक्सपेंशन की तरफ बढ़े. और ये हम कल से डिस्कस कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं दे आर शोइंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट और दे आर रिफ्लेक्टिंग द पॉजिटिव ग्रोथ. हालांकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है इकॉनमी में, बट अब जो कि कई सारे सेक्टर्स ओपन हो चुके हैं, इकॉनमी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं ओपन हो चुकी है, तो अब धीरे धीरे इकॉनमी में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया, चाहे वो सर्विसेज PMI हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग PMI हो या अदर कोई इंडिकेटर हो. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, सून कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन फॉर न्यू मेंबर्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेक ओवर इन लेबर लॉज. तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा. EPFO क्या होता है, EPFO का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं. इट कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एनी अपकमिंग एग्जाम. आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे, फिजल्ड. फिजल्ड में सुरसुराहट या असफल रहना. इसको हमने जो डील हो रही है उसके कंटेक्स्ट में इस न्यूज़ को सुना था, फिजल्ड. These are the references. You can follow me on Telegram, Twitter, ResearchGate and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.